بریک بلیٹن کا آغاز پاکستان کے فخر کے ساتھ۔ ارشد ندیم نے پاکستان کا جھنڈا اونچا کر دیا۔ پاکستان کا اولمپکس میں 32 سالہ انتظار ختم۔ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ ارشد ندیم نے اولمپکس کے جیولین فائنل میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ ارشد ندیم کی جیولین کے فائنل میں ریکارڈ بہترین تھرو 92.97 میٹر کی رہی۔ اولمپکس میں پاکستان کا یہ چوتھا گولڈ میڈل۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ارشد ندیم نے پاکستان کا جھنڈا اونچا کر دیا ہے۔ پاکستان کا اولمپکس میں 32 سالہ انتظار ختم ہو چکا۔ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ ارشد ندیم نے اولمپکس کے جیولین فائنل میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے۔ ارشد ندیم کی جیولین کے فائنل میں ریکارڈ بہترین تھرو 92.97 میٹر کی رہی، جبکہ اولمپکس میں پاکستان کا یہ چوتھا گولڈ میڈل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ارشد ندیم نے پاکستان کا جھنڈا اونچا کر دیا ہے۔ شاباش چیمپئن سندھ حکومت کا ارشد ندیم کو 5 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان۔ کراچی میں ارشد ندیم ایتھلیٹکس اکیڈمی قائم کرنے کا بھی اعلان۔ گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی اور دیگر کی ارشد ندیم کو شاندار جیت پر مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے، ارشد ندیم نے جیولین تھرو میں ریکارڈ قائم کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ارشد ندیم کو 1 ملین روپے دینے کا اعلان۔ مرتضی وہاب بولے کہ پاکستان واپسی پر قومی ہیرو کے اعزاز میں کراچی میں تقریب ہوگی۔ ارشد ندیم کا اولمپکس میں ریکارڈ بنانا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے، پوری قوم ارشد ندیم کے جیتنے پر خوش ہے۔ صوبائی وزیر سردار محمد بخش مہر بولے، ارشد ندیم نے اولمپکس میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کرنے والے کھلاڑی ارشد ندیم قوم کے ہیرو ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم اور پوری قوم کو مبارکباد۔ بولے، ارشد ندیم ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ جیولین تھرو میں نیا اولمپکس ریکارڈ قائم کر کے ارشد ندیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اولمپکس میں جیولین تھرو ایونٹ کے فاتح گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو کراچی کے طالبات نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ طالبات کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، پوری قوم ان پر فخر کرتی ہے۔ یہ تو کل رات کو ہم لوگوں نے میچ دیکھا اولمپکس کا، جیولین کے اندر پاکستان نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ ارشد ندیم ہی از اے ویری 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 گڈ ایتھلیٹ۔ سو پاکستان نے 32 ایئرس بعد اپنا فرسٹ گولڈ میڈل جیتا ہے، تو اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار اس۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات ہو نہیں سکتی۔ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ ارشد ندیم۔ الحمدللہ اتنا اچھا ایک مومنٹ ہے۔ اگست کا مہینہ بھی چل رہا ہے، انڈیپینڈنس منتھ ہے ہمارا، اور ارشد ندیم ہمارے لیے اتنی بڑی اچیومنٹ لے کر آئے۔ 40 ایئرس کے بعد گولڈ میڈل آیا ہے ماشاء اللہ سے پاکستان۔ وی آر سو پراؤڈ آف ہیم، اور ہمیں ان کا بہت اچھا لگ رہا ہے، ہمارے لیے بہت اچھا مومنٹ ہے یہ۔ بہت ایکسائٹیڈ ہے، بہت خوشی ہوئی، آخر پاکستان نے اتنے ٹائم بعد 32 ایئرس بعد گولڈ میڈل جیتا ہے اولمپکس میں۔ بہت خوشی تھی، ہم تو رات پوری جاگ کے اسی کا بھی انتظار کر رہے تھے کب میں کرے گا، اور بہت پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ جیتے اور آگے اس چیز کا سبب بنے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک میں زرعی برآمدات میں اضافے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ بولے کہ وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینی چاہیے۔ ماہرین کے خدمات سے زرعی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کاشتکاروں اور برآمد کنندگان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک روزہ دورے پر کراچی آمد۔ وزیر اعظم نے دوسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کا افتتاح بھی کیا، جبکہ سٹالز کا دورہ بھی کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ، گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت دیگر اہم شخصیات بھی موجود۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایاز رانا نے۔ جی ایاز، آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ جی بالکل، کراچی کی اس وقت یہ سیکنڈ جس کو کہتے ہیں دوسری بڑی نمائش کا جو ہے وہ وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا ہے۔ جیسے کہ امید کی جا رہی تھی کہ اس کے اندر تقریباً 1000 سے زائد جو ہے وہ مندوبین کو مدعو کیا گیا، اور اس کے اندر سب سے بڑا سٹال جو ہے وہ چائنیز، جو کہ ہمارے اس وقت گیسٹ آف آنر کا جن کو درجہ دیا گیا ہے، جس سے 200 سے زائد جو ہے وہ چائنیز کا افراد پہ مشتمل ایک ڈیلیگیشن ہے جو اس ایکسپو کے اندر شرکت کرنے کے لیے خصوصی طور پہ یہاں آیا ہے۔
اس کا آج یہ انعقاد ہو گیا جو کہ 3 دن تک جو ہے وہ کراچی ایکسپو سینٹر میں اس فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کا جو ہے وہ جاری رہے گی. اس کے اندر سب سے اہم بات یہ بھی رہی ہے کہ اس وقت فوڈ کے اوپر اس دفعہ بھی زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا گیا. اگر میرے کیمرہ مین جہاں سے آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت میرے پیچھے کپ میں دیکھیں یہ فوڈ کو لے کے جو ہے بہت خوبصورتی سے ساتھ جو ہے وہ کنٹینرز کے اوپر لگا کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہاں پہ اس دفعہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے اندر باہر سے جو شیفس ہیں ان کو بھی خصوصی طور پہ جو ہے بیرونی ملک سے جو مشہور شخصیات جو شیفس مانے جاتے ہیں اس وہ 3 دن تک وہ اس نمائش میں حصہ ہوں گے. وہ اپنے سیشنز کریں گے. اس کے اندر کھانے پکانے کے وہ طریقہ کار بھی دکھائے جائیں گے جہاں یہ ایک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے اہم بات جو ہے اس وقت ہماری ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں زراعت کی تو اس دفعہ جو ہمارے اس سال میں ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 8 بلین ڈالر یعنی کہ 8 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے اس وقت پاکستان نے کی ہے. اور جس کا ٹارگٹ جب ہم نے زبیر موتی والا جو کہ ٹی ڈیب کے روح رواں ہیں سی او ہیں ان سے ہم نے جب بات کی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اس ایکسپو سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں کہ 1 بلین ڈالر کے جو ہیں تقریباً 1 ارب ڈالر کے جو ہے اس میں معاہدے ہونے ہیں. اس میں وہ تمام چیزیں جو کہ اس پہ رکھی گئی ہیں اس کو نمائش میں پیش کرنے کے لیے اس کے اندر ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ MOU سائن ہوں گے. چیزیں ہماری پروڈکٹس نئی جو جدت لائی جا رہی ہے وہ دکھائی جائے گی. ہم اپنے چاول کو جس وقت دفعہ زیادہ سپورٹ جو ہے وہ زراعت میں اس وقت کی گئی ہے. ہمارا ملک اس وقت ملک میں 10واں بڑا ملک ہے جو چاول پیداوار میں مانا جاتا ہے اور بیرون ملک میں ایکسپورٹ کرنے میں اس وقت ہم 4تھے نمبر پر ہیں. اس سال کے ہم نے بیرونی ملک اپنا چاول جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا. اس کو دیکھتے ہوئے اس نمائش کے اندر بہت زیادہ امیدیں رکھی گئی ہیں کہ پاکستان کی جو وہ پروڈکٹس ہیں خاص کر جو نئے جدت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی گئی ہے کہ کم وقت کے اندر زیادہ پیداوار آئے جس کے اندر کیلے کو بھی بہت زیادہ جو ہے اس دفعہ فوکس کیا گیا ہے کہ پاکستان نے اب نیا ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہے جس میں کم ایکڑ کے اوپر کیلے کی جو ہے وہ زیادہ کاشت کی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ اس دفعہ نمائش کا ایک مین حصہ سمجھا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ چاول کے اوپر بھی جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے. تمام اس کے بعد آلو کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا آلو بھی جو ہے وہ اس دفعہ فوکس کریں گے کہ وہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی ایکسپورٹس بڑھیں. یہ ایک جو ہدف ہیں وہ رکھے گئے ہیں اس ایکسپو کے اندر. خاص کر ٹی ڈیب کی جانب سے ایک بڑا اقدام لیا گیا ہے جو یہ 3 دن تک جاری رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں اور ایسا ماحول دیا جائے تمام مندوبین کو جو بیرون ملک سے آئے ہیں اور اس کے اندر وہ جہاں ہماری ایگریکلچر ہو ہمارا فروٹ اور سٹرس پہ یعنی کہ جو ہمارا کینو اور اس کے بعد کی جو بائی پروڈکٹس یعنی اس کے بعد بننے والی جو پروڈکٹس ہیں خاص کر جیسے جو سرکہ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کینو اور اس کا جو جوس ہے اس کی مارکیٹ بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ سمجھی جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو سٹرس جو ہے اس کو سینیمن سیڈ کی بھی بات کی جا رہی ہے ٹی ڈیب کی جانب سے کہ ہم نے اس دفعہ 410 ملین کی جو ہے وہ تقریباً جو ہے ایکسپورٹ کی سینیمن سیڈ یعنی کہ جو تل ہے ہمارا پاکستان کا وہ بھی اب اس کے لیے بھی نئی مارکیٹ کھل گئی ہے اور وہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ تل کو بھی جو ہے اب دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اندر سے جو بائی پروڈکٹ نکلنے والی چیز ہے وہ تل کا تیل جو کہ کھانے پکانے میں بہت سی ایسی چائنیز ڈشز ہیں جس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے سینیمن آئل جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ تمام فوکس اس ایگریکلچر فوڈ کے اندر جو ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر جو نمائش ہے جو کہ دوسری نمائش ہے اس پہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھی گئی ہے زراعت کے اوپر. اور جہاں ہم کہہ رہے تھے کہ 8 سے 9 بلین ڈالر کی جو ہے ہماری زراعت ایکسپورٹ ہوئی ہے تو اس کے اندر اب ان کا ہدف ہے کہ اس کو 10 سے 12 بلین ڈالر پہ ہمیں لے جانا ہے اس سال ہی میں. جب یہ سال کا مالی سال کا اختتام ہوگا تو زبیر موتی والا صاحب نے یہ کہا تھا کہ بڑھایا جائے گا. ایاز رانا اس وقت ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ نمائش کے اندر کون کون سے سٹالز لگائے گئے ہیں اور پی ایم جو ہے وہ اس وقت کراچی کے دورے پر موجود ہیں تو سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی اس وقت اس علاقے پہ جو اس وقت ہم موجود ہیں یہ کراچی ایکسپو سینٹر کا علاقہ ہے. اس کو کارڈن آف کیا گیا تھا. وزیر اعظم جو ہے وہ آئے ان کے ساتھ بڑا ڈیلیگیشن بھی تھا. اب وہ جب ایکسپو سے یہاں سے نکلے ابھی ان کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کا ہیلی کاپٹر یہاں سے جاتے ہوئے ہم نے دیکھا گیا. تو یقیناً وزیر اعظم تو اندر سے اب جا چکے ہیں. میڈیا کو بھی جو ہے وہ باہر روک دیا گیا تھا اسی لیے ہم نے اس جگہ کا سلیکشن کیا. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بڑی پر رونق سی یہ جگہ ہے جہاں پہ اس کو جہاں فوڈ کے لیے جو اسٹالز لگائے گئے
तो वो अभी मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। कहा गया था कि 12 बजे के 1 बजे के नमाज के बाद जो है मीडिया को अलाउ करेंगे। सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात रखे गए हैं क्योंकि इसमें बैरून मुल्क से तकरीबन 75 ममालिक से लोगों का जो है वो शिरकत थी और साथ ही वज़ीर आज़म का भी आना था। तो इस वजह से आज काफ़ी इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, जिसकी वजह से हमने देखा था कि सुबह के औकात में यहाँ ट्रैफिक का भी काफ़ी दबाव रहा क्योंकि वज़ीर आज़म की मूवमेंट थी। तो वज़ीर आज़म इस दफ़ा अभी मूवमेंट की वजह से उनको देखा गया कि वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो मूव इन पे एक होटल की तरफ मूव कर गए क्योंकि अब वहाँ पे डेलीगेशन की उनकी जो है मुलाकातें हैं। अब वहाँ उन्हें जाना है, जो कि कराची में अब आए हैं, एक दिन का दौरा है उनका, उनकी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होनी है। ख़ास करके कहा जा रहा है कि गवर्नर सिंध और CM के साथ जो है उन्होंने मुलाकातें करनी है। उसके बाद अब 1 बजे के बाद जो है वज़ीर ख़जाना जो जहांजेब हैं वो उनका आने का यहाँ पे बताया गया है कि वो आएंगे और मीडिया से हो सकता है कि बात की जाए या PTV को ही दोबारा जो सरकारी मीडिया है उसी को इजाज़त देते हैं। अभी वो भी अयाज, हमें ये भी बताते चलिएगा कि आम शहरियों के लिए ये नुमाइश जो है वो कितनी पुरकशिश बनाई गई है, आम शहरियों को इन नुमाइश से क्या फ़वाइद हासिल होंगे? आम शहरियों के लिए जो है ये पुरकशिश वो जो रखा गया है, वो जो मैंने आपको शुरू में जैसे बताया कि जो ये मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ कि ये जो इंक्लूजन आपको मेरे अकब में दिख रहा था, ये एक इंक्लूजन बड़ा ही शहरियों को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें कुजीन शो लिखे गए हैं। यानी कि यहाँ पे बैरून मुल्क से बुलाए गए जो शेफ्स हैं वो आके अपनी डिशेस यहाँ बनाएंगे और यहाँ वो प्रेजेंट की जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे शोज़ यहाँ रखे गए हैं कि लाइव शोज़ यहाँ रखे जाएंगे, उनको लाइव कुकिंग दिखाई जाएगी। तमाम वो रेसिपीज़ जो लोग सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, जो बाहर ममालिक दूसरे ममालिक के अंदर जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो तमाम इसी तरीके का इसको सजाया गया है, रेस्टोरेंट जैसा इसको एक लुक दिया गया है। तो ये इस शो के लिए जो आम पब्लिक है, जो शहरी हैं, वो इधर आके थोड़ा इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कि जो नए शेफ जो दुनिया के नामी ग्रामी नाम हैं, जिनको लोग जानते हैं, जिसका इंटरेस्ट खाने पकाने में है और वो जानना चाहते हैं कि कोई नई नई डिशेस वो सीखें, तो शहरियों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा चार्म है कि जहाँ पर आके वो इसको देख सकते हैं और इस शो को इस तरीके से वो लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। जी ठीक है, ये तो आम शहरियों की बात होगी। अयाज ये बताएगा कि ताजिरों के लिए यहाँ पर क्या सहूलियात मौजूद हैं? देखिए, ताजिर जो हैं, जो ख़ास करके जो एग्रीकल्चर से जो मुंसलिक लोग हैं या वो लोग जो एग्रीकल्चर के बाद यानी कि जो उससे प्रोडक्ट्स बनाने वाले, जिसको बाय प्रोडक्ट्स यानी कि उसके बाद जो जिनकी फैक्ट्रीज़ हों, यानी कि जूसेस वाले हों या तमाम ऐसे चावल के बाद वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए एक फोकस रखा गया है कि ख़ासकर जो चीन से आने वाले जो शुरका हैं, उनका यही कहना है। हमने कुछ लोगों से बात कर रहे थे, हम जब आए उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि जो डेलीगेशंस आए, ख़ासकर वो अब फोकस ये है कि जहाँ ज़राअत तो बढ़े हुए, लेकिन उसके बाद जैसे जो चीज़ें बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, जो खाने पकाने के लिए बहुत सी ऐसी अशिया है, जो खाने पीने की अशिया है, जो ख़ासकर अगर आलू की बात करें तो चिप्स हैं या मैगी वगैरह जिस तरह की चीज़ें होती हैं, जो लोगों को नूडल्स हैं, उन चीज़ों के अंदर जो है लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए जो है अब उस पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि CPEC के बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी है, तो उसके बाद यही बात होती है कि चाइना जब आता है नाम, तो हमारे जहन में CPEC का नाम जो है सबसे पहले आता है। और उसी की ऊपर देखना ये कि अब जो फेस है, वो जो नया फेस आना है, जो अब CPEC का जो अगला फेस है, वो यही है कि इसके अंदर अब इंडस्ट्री लगनी है या इसके अंदर ऐसी जो सनतें लगनी है जो कि वहाँ चाइना के लिए भी जो है वो आसान हो यहाँ से चीज़ें ले जाना और वो यहाँ बनाए और यहाँ भी उसकी मार्केट हो। तो ये एक बड़ा जो सनतकार हैं या वो ताजिर हजरात जो कि फूड से यानी जो खाने पीने की अशिया से जो इस वक्त मुंसलिक या उनका कारोबार है, तो उनके लिए भी एक बड़ी नुमाइश होती है कि दूसरे ममालिक से भी लोग आके कुछ ऐसी अशिया भी यहाँ अपने साथ लेके आते हैं जो पाकिस्तान में नहीं होती। लेकिन अगर चाइना और हमारे जो मुल्क इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं, GCC कंट्री जो कि सऊदीया या कतर, अयाज राना आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला हाउस में एपिक्स कमेटी के अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास के हवाले से हमें बताएंगे आजिज़ जमाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताएगा इजलास कब तक शुरू होगा? जी हाँ, शेड्यूल के मुताबिक एक्सपो सेंटर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आला हाउस पहुँचना है, जहाँ पर एपेक्स कमेटी का एक इजलास उनकी सदारत में होगा। इस इजलास में वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान या नुमाइंदगान शिरकत करेंगे।
इंसदाद पोलियो के हवाले से इस इजलास में फैसले होंगे। इस वजह से पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के जिम्मेदार भी इसी इजलास में जी बहुत शुक्रिया आपका आजिज जमाली। आपको बताएं कि केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन के 2017 से रुके वाजबात का हजम 12,000 तक जा पहुंचा है। केएमसी के 23,000 पेंशनर्स 3 साल की इजाफी पेंशन से महरूम हैं। सदर सृजन यूनिट जुल्फ़िकार शाह बोले, ओजेटी में इजाफा न होने से पेंशनर्स को इजाफा मिलना मुश्किल है। पेंशन न मिलने की वजह से पेंशनर्स के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन के 2017 से रुके वाजबात का हजम 12 अरब तक जा पहुंचा है, जबकि केएमसी के 23,000 पेंशनर्स 3 साल की इजाफी पेंशन से महरूम हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2017 से 2024 आ गया, लेकिन जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन, उनके वाजिबात की अदायगी मामा बनी हुई है। 12 अरब रुपए से ज़ायद जो है ये अदायगियाँ तजावज़ कर चुकी हैं। 9,000 से ज़ायद ये मुलाजमीन हैं। ऐसा क्यों है, ये जानने की कोशिश करते हैं जुल्फ़िकार शाह से, जो कि मारूफ मजदूर रहनुमा हैं। जुल्फ़िकार शाह साहब, फरमाइएगा, ये अदायगियाँ क्यों नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23,000 से ज़ायद हमारे जो पेंशनर हैं, एक तो उनको इजाफा नहीं मिल रहा 2019-20 का, और अभी इस दफ़ा भी जो पेंशन में इजाफा हो ये नहीं हुआ। इसके साथ सबसे बड़ा जुल्म यह है कि मार्च 2017 से लेकर अब तक जो रिटायर और वफात पा चुके हैं मुलाजमीन, और 9,200 से ज़ायद हैं, उनके 12 अरब रुपए के वाजिबात हैं जो अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से 150 से ज़ायद जो है हमारे पेंशनर जो है वो अपने वाजिबात के इंतजार में ही इस दारे फानी से कूच कर गए। हमने इस सिलसिले में बारहा एहतजाज भी किया है और इस सिलसिले में बड़ी बारहवार भी किया। आज भी हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी इस सिलसिले में मीटिंग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है हमें अब जो मामला चल रहे हैं कि ओजेटी में अगर इजाफा नहीं होगा तो एक तो पेंशन में इजाफा नहीं होगा, तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि अगर फौरी तौर पर ये ओजेटी में इजाफा नहीं किया गया तो इसकी फिर जिम्मेदार हुकूमत सिंध होगी, और पेंशनर कुछ भी करने के लिए खुदसोजी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादती मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालती अहकामात पे बताया जाता है कि तमाम लवाजमात जो है वो अदायगी के लिए जमा कर लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये अदायगियाँ नहीं की जा रही हैं, और मुलाजमीन जो हैं वो शदीद परेशानी से, रिटायर्ड मुलाजमीन परेशान हैं। जी। और दूसरी जानिब महकमा तालीम का मफरूर और घोस्ट असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। कराची के ज़िला सेंट्रल के 41 प्राइमरी असातिज़ा को आज पेश होने का हुक्म। तफसीलात जानेंगे। आजिज जमाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बताइएगा इब्तदाई तौर पर क्या कार्रवाई की गई है? जी देखिए, ये सिटी 21 का क्रेडिट है कि मुसलसल इन घोस्ट, मफरूर और आदि गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ खबरें दे रहे हैं। आज इसकी अपडेट ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर तालीम की मंजूरी के बाद तमाम डीओज और डायरेक्टर्स ने घोस्ट, मफरूर और आदि गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ नोटिस किए। जिला सेंट्रल कराची के 41 असातिज़ा हैं जो भी मफरूर असातिज़ा की फहरिस्त में शामिल है। उनको आज 9 तारीख को आज 9 बजे सुबह को तलब किया गया था डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर सेंट्रल में। अब तक मालूम नहीं कि कितने असातिज़ा उनमें से पहुँचे या नहीं पहुँचे। अगर ये असातिज़ा वेरीफाइड होंगे तो ठीक है, वरना इनकी आईडीज़ बंद की जाएंगी और फिर इनके खिलाफ बरतरफी की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आजिज जमाली आपका। दूसरी तरफ आपको बताएं कि कराची में 93 सरकारी स्कूल गैर फाल हैं। सिटी 21 ने कराची में गैर फाल स्कूलों की तफसीलात हासिल कर ली हैं। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट में कराची में कायम 93 स्कूल को गैर फाल करार दे दिया गया है। तफसीलात आयमा खान से जानेंगे, आगाह कीजिएगा इस पर आयमा हमें। जी बिल्कुल, देखें कराची में जो है वो 90 से ज़ायद जो है वो स्कूल गैर फाल हैं, जिसकी तफसीलात जो है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। ये तमाम तर जो है वो सरकारी स्कूल हैं। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट की रिपोर्ट में जो है वो कराची में 93 स्कूलों को जो है वो गैर फाल करार दिया गया है। ज़िला शर्की ज़िला मलीर में जो है वो 68 स्कूल बंद हैं, जबकि ज़िला वस्ती में जो है वो 10 स्कूल जो है वो गैर फाल हैं। ज़िला वेस्ट में जो है वो 6 स्कूल जो है वो बंद पड़े हुए हैं, जबकि ज़िला किमाड़ी और कोरंगी में जो है वो
वो बंद स्कूलों की तादाद 4 है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जिला जनूबी में जो है वो एक स्कूल को गैर फाल करार दिया गया है। जिला शर्की में जो है वो कोई भी स्कूल गैर फाल नहीं है। जिला शर्की में जो है वो तमाम तर स्कूल जो है वो रन हो रहे हैं, जबकि मजमूई तौर पर कराची में जो है वो 18,000 से ज़ायद जो है वो स्कूल कायम है, जिनमें जो है वो तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद जो है वो भी 4 लाख से ज़्यादा है। जी आयमा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। निजी स्कूलों की मनमानी उरूज पर निजी स्कूलों का महकमा तालीम के अहकामात मानने से इनकार, मालिकान ने स्कूल खोल दिए। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स का एक्शन और रफिया मलाह ने मनमानी करने वाले निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला दिया। इस कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। आयमा खान इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आयमा, बताएगा क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो है वो बेशतर निजी तालीमी इदारे जो हैं वो खुले हुए हैं और छुट्टियां जो है उनमें ख़त्म हो चुकी है, जबकि महकमा तालीम की जानिब से जो है वो 15 अगस्त तक जो है वो स्कूल बंद किए गए हैं और 15 अगस्त से जो है वो नया तालीमी साल जो है वो शुरू होना है। 14 अगस्त तक तमाम तर तालीमी इदारों को जो है वो बंद रखने का कहा गया है मौसम की ख़राबी के बाइस। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर रफिया मल्ला मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेंगे। इशू ये है कि जश्न आज़ादी है तो हमारा नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि 7 से 14 तक हम जो है पैगाम पाकिस्तान और जश्न आज़ादी की तैयारियां करेंगे और इसको भरपूर अंदाज में मुल्की हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाएंगे। तो स्कूल जो वो बच्चे बुला रहे हैं जिनको वो प्रैक्टिस और रिहर्सल करवा रहे हैं, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम स्कूल बंद हैं और मेरी जो इंस्पेक्शन कमेटियां हैं वो आज भी विज़िट पे है। अब आप खुद देखें कल कितनी बारिश हुई, आज इतनी बारिश है, इस बारिश में कौन स्कूल खोलेगा और कौन से पेरेंट्स अपने बच्चे भेजेंगे? तो ये एक तासर देना कि भाई गवर्नमेंट की रिट नहीं है, तो गवर्नमेंट की रिट है। गवर्नमेंट को पता है कि ये जश्न आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिहर्सल के बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं, लेकिन स्कूल एकेडमिक नहीं खुले। शहर में जो लीडिंग स्कूल्स हैं वो जो है वो नहीं खुले हुए हैं, लेकिन कुछ जो मज़ाफ़ाती इलाकों में या जो छोटे इलाकों में जो स्कूल्स हैं वहाँ पे जो है वो बेशतर निजी तालीमी इदारे जो हैं वो इस वक्त खुल चुके हैं और कुछ स्कूलों में जो है वो 14 अगस्त के हवाले से जो है वो तैयारियों के हवाले से जो है वो रिहर्सल भी करवाई जा रही है, लिहाजा वहाँ पर बच्चों को जो है वो बुलाया गया है। ताहम जो निजी स्कूल खुले हुए हैं वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ जो है वो एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ये कहना है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी जिना अस्पताल की 80 में से 18 एकड़ ज़मीन पर मुबैना कब्ज़ा। जिना अस्पताल की ज़मीन, डॉक्टर फ्लैट्स, दीगर घरों पर गैर मुतल्लिका अफराद मुबैना काबिज़ हो गए हैं। रिटायर होने के बावजूद मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करें, घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। घर के लिए दरख्वास्तें देने वाले अफराद परेशान हैं। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ज़मीन से कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए मुताल्लिका इदारों से राब्ता। प्रोफेसर शाहिद रसूल बोले, अस्पताल के अंदर रिहाइश पजीर गैर मुतल्लिका अफराद को घर खाली करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात के लिए इब्राहिम रिंद से बात करेंगे। इब्राहिम, बताइएगा क्या मामला है, ये क्यों अफसर जो है वो घर खाली नहीं कर रहे? जी देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जिना अस्पताल की तकरीबन 80 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 18 के करीब है वो गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ इदारों या अफराद की जानिब से जो वो वहाँ पे कब्जा किया गया, जिस पर डायरेक्टर जिना अस्पताल ने मुतल्लिका इदारों से रब्ता करना शुरू कर दिया कि ये ज़मीन के लिए इकदाम किए जाएँ कब्जा हटवाने के लिए। जबकि इसके अलावा जो जिना अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स कॉलोनी के अंदर फ्लैट्स हैं, घर हैं, बंगले हैं और जो दीगर कॉलोनी के जो जिना अस्पताल के अंडर में है, जिसके मुलाजमीन कई बर्स से रिटायर हो चुके हैं और अफसरान भी ऐसे हैं जो कि आला अहदों पे फायज रह चुके हैं और रिटायर हो गए, तो वो अपने घर और बंगले और फ्लैट जो है वो खाली नहीं कर रहे, जिस पर अस्पताल के डायरेक्टर ने उनको भी हिदायत की कि वो भी जो गैर मुतल्लिका अफराद हो गए, अब जो अब रिटायर हो चुके हैं और उनकी फैमिली रह रही है, उनके कोई रिश्तेदार रहे हैं, तो वो फौरी से वो भी घर खाली कर दें। क्योंकि मुतअद्दिद ऐसे भी मुलाजिम हैं जिन्होंने कई बार से दरख्वास्तें दी हुई हैं कि वो जिना अस्पताल के अंदर कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको अंदर ही जगह दी जाए, लेकिन उनको घर नहीं मिल रहा मुतल्लिका अफराद को, जिनकी मतलब जिनका हक बनता है, लेकिन जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं जो रिटायर हो चुके हैं अब, तो उनको वो अभी तक काबिज हैं। तो अस्पताल की ज़मीन है, जो बाहर की ज़मीन है उसके हवाले से भी जो कि तकरीबन 18 एकड़ है, जबकि जो अंदर की ज़मीन है जहाँ पे फ्लैट्स हैं, जहाँ पे घर बने हुए हैं, उनके अंदर भी जो गैर मुतल्लिका अफराद रह रहे हैं। अस्पताल के जो साबिका मुलाजमीन हैं उनको भी घर खाली करने के लिए हिदायत कर दी है। मुलाजमीन का कहना है कि कुछ ऐसे भी मुलाजमीन हैं
उनका कहना है कि कई बरसों से हमने जो है अलॉटमेंट कमेटी को अपने जो है वो दरखास्तें दी हैं कि हमें अंदर अस्पताल के अंदर अलॉट किया जाए, लेकिन उनको घर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान है। तो फौरी तौर पर हुकूमत सिंध और अस्पताल की इंतजाम में चाहिए कि जिनके हक बनता है उनको अलॉटमेंट करी जाए घरों की रिहाइश के अंदर, रिहाइश के लिए, जबकि जो बाहर का कब्जा है उस हवाले से जो मुतल्लिका इदारों से रब्ता किया जाए। जी इब्राहिम, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक और अहम मामले पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब जिना अस्पताल में 4000 मुख्तलिफ पोस्टें खाली हैं, मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल बोले कि मुतादिद इश्तिहारात दिए गए, लेकिन कुछ अफराद अदालत चले जाते हैं जिस पर स्टे ऑर्डर जारी हो जाता है। अदालत से अपील है कि अस्पताल के मसाइल फौरी हल करें। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस पर अपडेट करेंगे हमें। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के सबसे बड़े अस्पताल जिना अस्पताल के डायरेक्टर ऑफिस में, जहां पर प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब हमारे हमरा मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या अच्छे इकदाम हो सके अभी तक 3 साल के दौरान आपके जिना अस्पताल में? थैंक यू वेरी मच इब्राहिम। जो सबसे अच्छी बात हुई है, जो पिछले दिनों हम बहुत अरसे से एक आप सुन रहे होंगे फैकल्टी की कमी है, तो अब माशाल्लाह हमारा MOU साइन हो गया है JSMU के साथ, और पहला ग्रुप फैकल्टी का 13 लोगों का पोस्ट कर दिया गया है। जो पोस्टें जिना अस्पताल की फेडरल गवर्नमेंट ने हमें सैंक्शन की हुई थी और जो हमने इश्तिहार दिया था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ये सिंध डोमिसाइल के लोगों को दी जाएं, लेकिन ये पोस्टें फेडरल गवर्नमेंट की हैं। जब हमने इनको इश्तिहार दिया तो कोर्ट में एक जो किसी और सूबे का डोमिसाइल होल्डर है वो चला गया और उसने कहा कि जी मेरा भी राइट है, जिस पे स्टे हो गया। तो मुझे किसी के इस राइट पे कोई इतराज़ नहीं है कि आप कोर्ट मेरे साथ जाती हुई, मुझे राइट है, मैं कोर्ट जा सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट ये कि कोर्टों को अस्पताल के मैटर्स, ख़ासतौर पर जिना अस्पताल जैसे जो तकरीबन आप समझें वाहिद लाइन ऑफ सपोर्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, इसको थोड़ा जल्दी सॉर्ट आउट कर। 3-4 हज़ार पोस्टें खाली हैं, अगर ये भर जाएं तो आप सोच सकते हैं कि फैसिलिटी कितनी बेहतर हो जाएगी। दुआ करें कि जल्द अज जल्द कोर्ट से फैसला करें तो हम आपको 9 से 5 की सर्विस भी दे सकें। पूरे कराची के मसाइल को हल करने के लिए सब अस्पतालों को एक साथ बेहतर करना पड़ेगा, सिर्फ एक को ठीक करने से आपके कंप्लीट मसाइल हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब जो कि जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिन्होंने तफसीली बताया कि यहाँ पर पोस्टें की तादाद बहुत ज्यादा जो खाली है, लेकिन अदालत की वजह से वहाँ पे तैनाती नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मजीद कॉन्ट्रैक्ट पे या मुस्तकिल बुनियादों पे भर्तियां की जा सके, ताकि यहाँ पे आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लियाकताबाद से कारसाज जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा क्यों ट्रैफिक जाम है इतनी शिद्दत से? यहाँ पे देखा जाए, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है कराची एक्सपो सेंटर में आमद हुई थी, और जो दूसरी एग्री एक्सपो जो नुमाइश हो रही थी, जिसके बाद हसन स्क्वायर ब्रिज के ऊपर से स्टेडियम जाने वाली रोड पर शदीद जैम था। कुछ वक्त के लिए जो ये ट्रैफिक बंद किया गया था, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जैम हो गया था। गरीबाबाद से आने वाली ट्रैफिक को हसन स्क्वायर के ब्रिज तक जो है लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, और ये लंबी कतारें देखा जाए तो लियाकताबाद अंडरपास से बाहर निकलते हुए देखा गया। इसके साथ साथ अगर शहर में देखा जाए मुख्तलिफ जगहों पर शदीद ट्रैफिक जैम है, और आवाम जो दफातर जा रहे थे लंबी लंबी कतारों में वो फंस गए थे। कई घंटे उनको लग गए, यानी सुबह के वक्त जो शुरू हुआ था तकरीबन 9:30 बजे से कई लोग 2-2 घंटे तक फंसे रहे। अब एक बार फिर जो है अब करंट अपडेट आई है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है कराची एक्सपो सेंटर से वो वहाँ से निकले हैं इफ्तिताई तकरीब के बाद, तो जिसके बाद से एक बार फिर जो है शदीद ट्रैफिक जैम हो गया है। और यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो स्टेडियम रोड पे जो देखा जाए, वहाँ पे पहले जब मैचेस होते हैं तो स्टेडियम पे वहाँ पे जैम हो जाता है। अब कराची एक्सपो सेंटर में जो नुमाइश है उसके बाद शदीद ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बताया जा रहा है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस की अपडेट आई है कि हम शहर फैसल पे भी देखें तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट के नाता खान ब्रिज है वहाँ पे भी जो मरम्मती काम हो रहा है, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो आवाम है वो ट्रैफिक जैम में परेशान है, और ख़ास तौर से इस वक्त जो कराची एक्सपो सेंटर में जो नुमाइश चल रही है उससे लियाकताबाद से कारसाज जाने वाली ट्रैफिक पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। और दूसरी जानिब डाकखाना से 3 हट्टी जाने वाली रोड पर ट्रैफिक का दबाव है। सड़क की मुरम्मत के लिए खड़ी मशीनरी की वजह से ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। बात करेंगे इस हवाले से, अनुषा जाफरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा बताएगा।
वाला रोड है वहाँ पर मौजूद है, जो कि तीनहट्टी की तरफ जा रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो आहिस्ता हुई भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सड़क का मरम्मती काम के लिए जो है वो मशीनरी ला के खड़ी की हुई है, और साथ में जो रोड में पाइप डलते हैं वो भी यहाँ बीच सड़क पर जो है वो ला के रखे हुए, लेकिन हमें काम होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ट्रैफिक का दबाव उसकी वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह का औकात है, हम देख रहे थे अब से कुछ देर पहले जब हम पहुँचे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासर हुई थी। अब जाके स्लो होकर जो है ट्रैफिक आगे से निकल रहा है। और अगर मैं अपने कैमरा मैन हसन जाफरी को बोलूँ थोड़ा सा कैमरा मूव करके अगर दिखाएं उस साइड, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक मशीनरी लाके जो है वो खड़ी की हुई है, और उसी के साथ जो है वो पाइप पड़े हुए हैं जो कि एक मरम्मती काम के लिए यूज़ होते हैं। ये बड़े पाइप्स की वजह से जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आधे रोड तक जो है वो ये पाइप्स रख दिए गए लाकर, यानी कि आधा रोड जो है वो तकरीबन इसी मशीन ने और इन पाइप से जो है वो कवर करके रखा हुआ है। मरम्मती काम के नाम पर जो है वो इस तरीके से बीच में लाकर जो है वो इंतजामिया की जानिब से रख दिया गया है, मशीनरी लाकर खड़ी कर दी गई है, जिसकी वजह से जो है वो अभी अगर ये आप देखें ये जो गाड़ी है ये रॉन्ग वे आ रही है, ये वन वे ये टू वे रोड है और यहाँ से वन वे ये गाड़ी जा रही है। ये ट्रैफिक का निज़ाम है, मतलब ट्रैफिक पुलिस रोकने वाली नहीं है रॉन्ग वे जाने वालों को। यहाँ पर जो है वो बड़ा हैवी ट्रैफिक है वो भी यहाँ से गुजर रहा है, जो रक्शे हैं वो भी गुजर रहे हैं, साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गुजर रही है, लेकिन शहरियों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना है। कंजस्टेड एरिया है ये, काफ़ी ज़्यादा दुकानें भी बनी हुई हैं, लेकिन जो है वो ताहाल हम मरम्मती काम होता हुआ हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, और ट्रैफिक की रवानी जो है वो थोड़ी बहुत मुतासिर होती भी नज़र आ रही है। दोपहर के औकात में यही ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाता है। जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अनुषा। बीआरटी मंसूबे की बात करेंगे। बीआरटी रेड लाइन का 15% काम मुकम्मल हो चुका है। चीफ एग्जीक्यूटिव 2 ऑफिसर शुमाइला मोहसिन की सिटी 21 से गुफ्तगू, कहती हैं कि मंसूबे के दरमियान आने वाले तमाम पेडेस्ट्रियन ब्रिज को रेड लाइन बस स्टॉप से मुंसलिक कर दिया गया है। 26 किलोमीटर रेड लाइन मंसूबे में 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। पूरे मंसूबे में 9000 दरख्तों की कटाई की, लेकिन बदले में 45,000 नए दरख्त लगाएंगे। मज़ीद जानते हैं अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, शहर कराची में बीआरटी रेड लाइन का काम जो है वो तेजी से जारी है। गुज़िश्ता चंद रोज पहले हम जो है वो बीआरटी रेड लाइन के मंसूबे पर मौजूद थे, जहां पर हमने बराह रास्त दिखाया कि काम जो है वो तेजी से चल रहा था। वहां के कॉन्ट्रैक्टर से भी हमने बात करने की कोशिश की थी और काम देखा था कि वहां पर जो है वो मलिर हॉल के हिस्से पर भी जो है वो हम मौजूद थे। ये जो बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा है 26 किलोमीटर का ये मंसूबा है। मलिर हॉल से जो है वो नुमाइशा की बीआरटी रेड लाइन जो है वो चलाई जाएगी, लेकिन अभी तक इसका काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो रेड लाइन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुमाइला मोहसिन मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे, ये बताएगा कितना काम हो रहा है और कितनी तेजी से हो रहा है, कब तक जो है वो इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा, बेसिकली ये जो हमारा मलिर हॉल से लेकर नुमाइश तक का सेक्शन है, ये 2 पैकेजेस में डिवाइड है। प्लॉट 1 मलिर हॉल से मौसमियात तक है और दूसरा जो है वो मौसमियात से लेके नुमाइश तक प्लॉट 2 है। इसमें तकरीबन टोटल 22 स्टेशन है, 26.6 किलोमीटर का ये ओवरऑल ट्रैक है। अभी क्योंकि आपको पता है कि काम पिछले अरसे में रुका हुआ था, अब वो काम दोबारा से स्टार्ट हुआ है और इसमें अब तक की जो है 15 से 20% हम इस पे प्रोग्रेस ले चुके हैं और बाकी 80% जो है उसका जो टारगेट है वो जून 2026 का है। 2026 तक ये दोनों लॉट्स कंप्लीट हो जाएंगी और इसके साथ साथ 2 डेपोज हैं जहां से बसेस चला करेंगी, तो वो डेपोज भी हम जून 26 तक कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल यकीनी तौर पे सीईओ शुमाइला मोहसिन हमारे साथ मौजूद थी और इस मंसूबे के तहत जो है वो इन्होंने हमें तमाम चीजें जो है वो बहुत ही डिटेल में बताई और ये जो यहाँ पर पूरा मैप बनाया हुआ है इसमें हर चीज जो है वाज़े तौर पर देखी जा रही है। तकरीबन अभी किसी भी हिस्से का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन शर्जिल इनाम मेमन की हिदायत पर जो है वो दिनों रात काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है वो इस मंसूबे को जो है वो इख्तिताम पज़ीर किया जाए। जी। और नाजरीन, यहाँ बात करेंगे तामीर शुदा रिहायशी और तजारती मराकज़ की इमारतों में कार पार्किंग बहाल कराई जाए। DG SBCA के ज़रिए सदारत इजलास में अहम फैसले। अब्दुल रशीद सोलंगी बोले, पब्लिक सेल प्रोजेक्ट पर मुकम्मल तफसीलात से मुतालिक बोर्ड पर QR कोड को नुमाया किया जाए। गैर कानूनी तामीरात का खात्मा करके कार पार्किंग को बहाल किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताएगा क्या क्या फैसले हुए? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम इजलास देखा गया कि बिल्डिंग कंट्रोल के दफ्तर में हुआ, जिसकी सदारत डायरेक्टर जनरल अब्दुल रशीद सोलंगी ने की और तमाम रीजनल के और अजला के तमाम डायरेक्टर जो है वो इस इजलास में शरीक थे, जिनको खुसूसी तौर पर हिदायत दी गई कि कराची में तामीर और ज़ेर तामीर जो इमारतें हैं उन पर कार पार्किंग जो अप्रूव कराई जाती है, लेकिन उसके बाद कार पार्किंग की जगह पर जो है वो दुकानें, गोदाम, ऑफिस बना दिए जाते हैं।
جس کے باعث جو ہے شہر میں ٹریفک کی روانی میں خلل پڑتا ہے تو واگزار کرایا جائے وہ تمام جگہوں کو اور وہاں پہ پارکنگ کو جو ہے وہ بحال کرایا جائے. انتظامیہ جو ہے وہ حکومت سندھ کے احکامات پر جو ہے وہ تمام بلڈرز اور تعمیراتی مراکز سے جڑی ہوئی جو انجمنیں ہیں ان کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کرے کہ فوری طور پہ اس میں اقدامات کیے جائیں. عوام کی جان و مال کے تحفظ کو مقدم رکھنا جو ہے وہ تمام پالیسی سیوک رائٹس کے تحت جو ہے یہ اجلاس ہوا جس میں تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ غور کیا گیا. ساتھ ساتھ جو ہے جلد سروے مکمل کر کے قانون سازی کے اجرا کا بھی جو ہے وہ ہدایت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک سیل پروجیکٹ پر تمام تفصیلات جو ہے وہ ہدایت دی گئی ڈائریکٹرز کو کہ بورڈ پر آویزاں کی جائیں اور ساتھ ساتھ QR کوڈ کو جو ہے وہ نمایاں کیا جائے. تعمیراتی مراکز میں جو ہے وہ آگ لگنے کے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں. پارکنگ نہ ہونے کے باعث ان مقامات پہ گودام اور دکانیں تعمیر کرا دی گئی ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے جائیں تاکہ ٹریفک کی روانی بھی بحال رہے اور فائر فائٹنگ کے آلات جو ہے وہ بلڈنگوں میں عمارتوں میں رہائشی کمرشل اور جو کاروباری مراکز ہیں ان میں یقینی بنائے جائے کہ فائر فائٹنگ کے آلات جو ہے وہ نصب کرائے جائیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. اور ساتھ ساتھ غور کیا گیا کمشنر کراچی CM سندھ اور دیگر بزرگ کی ہدایت پر سندھ حکومت کے کہنے پر ڈائریکٹر جنرل نے تمام ڈائریکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ بلڈنگ میٹیریل جو زیر تعمیر عمارت کے باہر پڑا ہوتا ہے آدھے سے زیادہ روڈ جو ہے وہ گھیرا ہوا ہوتا ہے جس پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے حادثات کا سبب بنتا ہے تو وہ تمام جو بلڈنگ میٹیریل سڑکوں پر موجود ہوتا ہے اس کو فوراً ہٹایا جائے اور اس کے خلاف جو ہے ان کے جو بلڈرز ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے. جی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا احسان عباسی. بات کریں گے موسم کے حوالے سے. محکمہ موسمیات نے مونسون الرٹ جاری کر دیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک کے بالائی وسطی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں. آج سے 11 اگست کے دوران کراچی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آئمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے. آئمہ موسم کا مزید احوال بتائیے گا. جی بالکل دیکھیں آج سے جو ہے وہ بحر عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں جو ہیں وہ ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں جو ہے وہ داخل ہو رہی ہیں جس کے زیر اثر کراچی میں بھی جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج سے جو ہے وہ بادل برسنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج سے لے کے جو ہے وہ 11 اگست تک کراچی میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارشیں جو ہے وہ متوقع ہیں. تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ محکمہ موسمیات نے اپنی الرٹ بھی جو ہے وہ جاری کر دی ہے جس میں جو ہے وہ تمام تر اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے. جبکہ یہ بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گرج چمک کے ساتھ جو ہے وہ آندھی بھی چل سکتی ہے جس سے معمولات جو ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. تاہم جو ہے وہ شہریوں کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. جبکہ بارشوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 3 روز کے دوران جو ہے وہ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. جبکہ مطلع جو ہے وہ دن کے اوقات میں زیادہ تر ابر آلود رہے گا اور رات میں جو ہے وہ تیز بارش متوقع ہے. جی رات میں تیز بارش متوقع ہے. شکریہ آئمہ خان آپ کا. اور ناظرین ایکسپورٹرز نے بجلی کے بلوں میں چارجز کو سمجھ سے بالا تر قرار دے دیا ہے. عفیف صدیقی کہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے نظام کو درست کرنا ہوگا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چوری کوئی اور کرے اور وصولی ہم سے ہو. 60 روپے فی یونٹ بجلی میں 24 روپے کیپیسٹی چارجز وصولی کرنا ظلم ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا بتائیں گے اشرف خان. مقامی صنعت کاروں یا ایکسپورٹرز کو کنسرن شو کر رہے ہیں کہ بجلی کے جو بل ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جو 1 سال پہلے کی بات کریں جس کا 1 کروڑ کا بل آتا تھا اب 2 کروڑ کا بل آ رہا ہے. آگے کیسے چلے گا ایسے اس کے اوپر کنسرنس ہو رہے ہیں. ایکسپورٹر عفیف صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے. جانتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کتنے چارجز ہیں. کیپیسٹی چارجز ہیں, سود کی مد میں 3 روپے 23 پیسے ہیں, باقی دیگر چارجز ہیں, پھر پروٹیکٹڈ ان پروٹیکٹڈ کہیں ہیں ایسا آپ باہر بھی جاتے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں کہیں ایسا پروٹیکٹڈ ان پروٹیکٹڈ نہیں ہے. جو دوسروں کا بوجھ ہے, جو چوری کا بوجھ ہے وہ بھی ہم بیئر کر رہے ہیں. جو پروٹیکٹڈ ہیں ان کا بھی ہم دے رہے ہیں. جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں اس کا بھی بیئر ہم لوگ کر رہے ہیں. تو ہم اپنی انڈسٹری کیسے چلائیں گے؟ جو ایک نارمل انسان ہے جس کی 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ ہے وہ اپنے بجلی کے بل کیسے پے کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. انڈسٹری برباد ہو گئی ہے ان بجلی کے بلوں کی وجہ سے. آج کے دن میں 24 روپے ہم صرف کیپیسٹی چارجز میں دے رہے ہیں انکلوڈنگ ٹیکس. تو میں کیوں کس بات کے 24 روپے دوں؟ 60 روپے کے یونٹ پہ 24 روپے آپ کا جو ہے وہ 30% سے زیادہ آپ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں جو کوئی یوٹیلائز نہیں کر رہا. لیکن پاور پلانٹ لگے ہیں تو ہمیں ان کو پیسے دینے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے ان پاور پلانٹ آپریٹرس کے ساتھ
اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو سلولی کیسے ختم کریں, کیونکہ یہ پاکستان جس اکنامک حالات سے گزر رہا ہے, جتنی مشکلات سے گزر رہا ہے, اس میں پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس طرح جو ہے وہ عوام پہ بوجھ ڈالیں, انڈسٹریلسٹ پہ بوجھ ڈالیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو پروٹیکٹڈ ہے, ان پروٹیکٹڈ ہے, سب کے لیے فلیٹ ریٹ ہونا چاہیے. جو بجلی کنزیوم کر رہا ہے وہ اس کے پیسے دے. جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس پہ سختی کی جائے, کنڈے ختم کیے جائیں. یہ بزنس کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے مہینے میرا بجلی کا بل آئے گا کتنا, میرا اگلے 3 مہینے بجلی کا ریٹ کیا ہوگا, تو میں آگے جو کانٹریکٹس کر رہا ہوں ایکسپورٹ کے, میں کیسے فکس کروں, میں کس ریٹ پہ فکس کروں. میں ہمارے پاس کوئی کیلکولیشن, کوئی ویژن ہے ہی نہیں کہ آگے ہم کس طرف چلیں گے. تو یہ ایک بہت ڈیمیجنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے, اور گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے. جی, جیسا کہ آپ نے سنا, یہاں اہم تجاویز بھی دی ہیں کہ حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو کیپیسٹی چارجز اور دیگر چارجز اس کو فوری طور پہ ختم کیا گیا ہے یا اس کے مذاکرات کیے جائیں. ساتھ ہی جو عوام ہو یا کنزیومر ہو, اس میں پروٹیکٹڈ اینڈ پروٹیکٹڈ کا معاملہ بھی ختم کیا جائے. جی.